Respected students, today we will learn electrophilic substitution reaction of benzene. You have seen the structure of benzene and you are aware of the fact that this benzene ring contains 3 pairs of pi electron, and these pi electrons are delocalized, and because of the presence of these pi electrons, this benzene undergoes electrophilic substitution reactions. Means any one of the hydrogen of benzene ring is being replaced by an electrophile. Electrophile is an electron loving group. Electro means electron, phile means loving, the species that loves the electron. It means this will have either a positive charge or will be electron deficient, like Lewis acids. This reaction proceeds via 3 steps. Number 1, generation of electrophile. सबसे पहले चरण में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है. दूसरे चरण में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और तीसरे चरण में प्रोटॉन रिमूव होता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से, जिससे कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीस्टोर्ड किया जा सके, पुनर्स्थापित किया जा सके. ये कैसे विभिन्न चरणों में संपादित होता है आगे देखिए. स्टेप 1, दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल is being attacked by aluminum chloride. Aluminum chloride is a Lewis acid. Its octet is not complete. That's why this will love the electrons. This chlorine undergoes heterolytic cleavage, unequal distribution of electron. Both the electrons are shifted towards any one of the chlorine atom. Then what will happen? The species from all the electrons have been shifted will form the positively charged chloronium ion, and this is an electrophile in this reaction. And this aluminum chloride will attach with the other part of the chlorine having the negative charge. इससे AlCl4 माइनस बनता है. मेन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्लोरोनियम आयन है. उसी तरह से जब मेथिल क्लोराइड को एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो मिथाइल कार्बोकेटायन बनता है. दिस इज द मिथाइल कार्बोकेटायन. उसी तरीके से अगर एसिटिल क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो एसाइलियम आयन बनता है. दिस आल्सो वर्क्स एज द electrophile. All of these, whether it be chloronium ion or methyl carbocation or acetylium carbocation, all these behaves as the electrophile. And in the next step, formation of carbocation. This electrophile, the pi electrons from the benzene ring, each of the carbon atom of benzene ring is sp2 hybridized. Each one of the carbon, be it carbon number 1, 2, 3, 4, 5 or 6, each carbon atom is sp2 hybridized. The pi electron shifts toward the electrophile. Electrophile is the electron loving. That's why this receives. दोनों हाथ फैला करके इनका इस्तेमाल करता है, स्वागत करता है, शुभागमन की प्रतीक्षा करता है. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को दोनों हाथों से रिसीव कर लेता है, उनका स्वागत करता है. तो इस तरीके से इसका अटैक होता है. अब जब जा कर के यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, जिसको हम इन जनरल नेम में एरिनियम आयन कहते हैं. जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा कर के दोनों इलेक्ट्रॉन इससे बंद बना दिए तो दिस कार्बन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द पॉजिटिवली चार्ज. अब यहाँ पर जो है, जो पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, यहाँ पर sp3 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4. दिस कार्बन बिकम द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. The carbon with which electrophile attaches in the sigma complex has become sp3 hybridized. Kindly notice this change.
Prior this was sp2, and during the formation of sigma complex, this particular carbon has acquired sp3 hybridization. Then what happens in the net? Uranium ion gets stabilized by the resonance. यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा इस पोजीशन के लिए, और फिर उसके बाद ये आपको डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यूरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है। इसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर। फिर उसके बाद ये आपको सभी का एक कि दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बेंजीन रिंग। दिस डज नॉट स्टे एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। किसी एक कार्बन विशेष पर धनात्मक आवेश नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर इसका प्रभाव होगा। अब उसके बाद क्या होता है, रिमूवल। तीसरे चरण में ये जो आपको हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेंगे, तभी आपको जो है इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। और इसी जो sp3 हो गया है यहाँ पर, इसको sp2 में कन्वर्ट करना है। जब तक sp2 में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस अप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस प्रोटॉन को निकाला जाता है, इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और डीप्रोटोनेशन कहते हैं, टू स्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीजेस ए प्रोटॉन, यहाँ से एक प्रोटॉन इसको रिलीज करेगा, जो है यहाँ पर मिल गया है, रिलीजेस ए प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑन द अटैक बाय एल्युमिनियम एंड द केस ऑफ हाइलोजिनेशन, अल्काइनेशन एंड एसाइलेशन। नाइट्रेशन में एक अलग चरण होता है। तो इस तरीके से ये जो है, जो पहले चरण में AlCl4 माइनस स्पीसीज बनी है, ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी अपनी तरफ, तो HCl और Al3 बन जाएगा आपका। अब ये चाहे क्लोरोबेंजीन हो जाए, या आपका जो है मिथाइल बेंजीन मीन्स टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जाए, या COCH3 यहाँ पर एसिटिल ग्रुप आ जाए, यानी कोई भी एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। आपका धन्यवाद फॉर पेशेंस शेयरिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एकेडमिक वीडियोज़।